Hello, good evening, students. Today we will do the macroeconomics, meaning, features, importance, and scope. Yesterday, what we have done? Microeconomics, and today we will do what? Macroeconomics. Okay, first we will start with what? Meaning. Macroeconomy is a branch of economic which analyzes the entire economy. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी क्या बोलता था? कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में स्टडी करना। वहीं पे आपका मैक्रो इकोनॉमी बताता है कि जो भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं वो एंटायर इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना है। इट मे डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, आपकी कंट्री का इनकम, कंट्री का आउटपुट क्या है, कंट्री कितना इन्वेस्ट करती है, टोटल इन्वेस्टमेंट, कंट्री में जितने भी लोग हैं उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, सेविंग कितनी है, कौन सा एक पर्टिकुलर प्राइस यूज़ करती है हमारी इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज़ ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? बिजनेस साइकिल. ओके. नेक्स्ट इज़ व्हाट? फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी. आपके बिजनेस कभी भी कांस्टेंट नहीं चलते. देयर मे बी द फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस, देयर मे बी द अप्स एंड डाउन्स इन द business. Macroeconomy is a study of aggregate. Remember the word aggregate. Aggregate is what? Total. Microeconomy study करता है individual level पे, and macroeconomy study about the aggregate. We will come to the definition. We will skip the first definition and we will do the second definition. According to Professor Carl Spiero, macroeconomics deal with the functioning of economy as a whole. मैक्रो इकोनॉमी आपका डील करता है, फंक्शन करता है आपके इकोनॉमी को एज अ होल. मतलब ही टेक द एंटायर इकोनॉमी. ही डू नॉट स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल commodities. He study about the entire economy. Come to the first question, that is what? Scope of macroeconomics. Here you can see the chart on your screen. What chart indicated you that theory of income and employment, theory of general price level and inflation, theory of economic growth and development, macro theory of distribution. First we will go by one. First is what? Theory of income and employment. In theory of income and employment there is what? Theory of consumption function and the theory of investment. And if we merge both theory of consumption and theory of investment, what we get? Theory of business cycle, that is known as in what? Trade cycle. Okay. First is what? Theory of income and employment. Already I have explained you what is theory of income and employment. Basically what happens, income and employment indicated that जैसा आपका इनकम होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप खर्चा करते हो. सपोज इफ आई एम हैविंग इन सम अराउंड ऑफ 80,000 रुपीज़ का मेरा इनकम, अकॉर्डिंग दैट ओनली आई विल स्पेंड माई मनी. येस और नो? दिस हैपन्स. तो व्हाट योर इकोनॉमी सेज कि आपकी इकोनॉमी में जितना इनकम आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके इधर एम्प्लॉयमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका कंजम्पशन पैटर्न होगा. Okay, that indicated what? Theory of business cycle. Theory of business cycle is also a part and parcel of the theory of income and employment. ये क्या है? Part and parcel है किसका? Income and employment का. Come to the next. Next is what? Theory of general price level and inflation. Macroeconomic analyses show how the general price level is determined and further explain what causes the fluctuation in it. The study of general price level is significantly on the account of the problem created by the inflation and deflation. First I will clear you the meaning of inflation and deflation. Inflation is what? Increase in price. Deflation is what? Decrease in प्राइस. तो जनरल प्राइस लेवल कभी यूज़ होता है जब आपकी इकोनॉमी में क्या होगा? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होगा. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट? theory of growth and development. Macroeconomic consists of the theory of economic growth and development. Growth is what? Quantitative, and development is what? Qualitative. It explains the causes of underdeveloped and the poverty. जो growth and development है आपको किधर दिखाई देगा? underdeveloped countries में ज़्यादा दिखाई देगा. तो better way or the better strategy is what? You have to use both growth also and the development also. You can't stuck up with a one particular thing.
Next is what? Macroeconomy of distribution. Macroeconomy of distribution deal with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. Whatever the income you are getting, that you have to distribute it in the particular four ways. That is what? Rent, wages, interest and profit. That is indicated what is the total national income. From where we get the rent, wages, interest and profit? We get the rent, wages, interest and profit from फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमें ये चारों चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलती हैं. वी हैव डन विद फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपको? फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. फीचर्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट क्या दिया? स्टडी ऑफ एग्रीगेट. जब मैंने लास्ट लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमी सिखाया था तो उसमें था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. अभी इधर हम किसकी स्टडी करेंगे? तो हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट की. मतलब मैं अगर मैक्रो लेवल पे कोई भी स्टडी करूँगी तो मैं मेरे इकोनॉमी को होल में स्टडी करूँगी. आई विल टेक माई एंटायर इकोनॉमी. आई विल नॉट स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर यूनिट और द पर्टिकुलर पार्ट. दैट मीन्स मैं नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करूँ, नेशनल आउटपुट के बारे में स्टडी करूँ, नेशनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करूँ, एक बेसिक प्राइस लेवल लो, जनरल प्राइस लेवल और बिजनेस साइकिल. नेक्स्ट इज व्हाट? इनकम थ्योरी. मैक्रो इकोनॉमी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इनकम थ्योरी. अभी इनकम थ्योरी बेसिकली इनकम इज़ रिक्वायर्ड. जब मैंने आपको माइक्रो सिखाया था तो उधर हमने क्या लिया था? प्राइस थ्योरी. कौन सी प्राइस को हम यूज़ करें? इधर हम क्या लेंगे? इनकम थ्योरी. It different elements, method of measurement and the social counting. Macroeconomic deal with the aggregate demand and supply. एग्रीगेट का मतलब है टोटल. तो मैक्रो इकोनॉमी कैसे चलती है? आपकी पूरी कंट्री का डिमांड और पूरी कंट्री का सप्लाई, और उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस में इन्फ्लेशन भी हो सकता है, डिफ्लेशन भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग्स मैं बता सकती हूँ कि मेरी इकोनॉमी ने कितना इनकम अर्न किया. Next is what? General equilibrium analysis. Macroeconomic deal with the behavior of a large aggregate. हम किसके बारे साथ स्टडी करते हैं? लार्ज एग्रीगेट में. माइक्रो में क्या था? पार्टली स्टडी करना. इसमें क्या करेंगे हम? लार्ज स्टडी. मतलब हम पूरे एंटायर इकोनॉमी को इंक्लूड करेंगे विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड द प्राइस. नेक्स्ट इज व्हाट? इंटरडिपेंडेंस. मैक्रो analyzes take in account the interdependence between the economic variable such as income किससे रिलेटेड होना चाहिए? आउटपुट से. आउटपुट किससे रिलेटेड होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट से. एम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट से. और इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए? प्राइस लेवल से. दैट इज व्हाट? द इंटरडिपेंडेंस. फॉर एग्जाम्पल, change in the level of investment will finally result in the change in the level of income. अगर मेरा इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आता है तो बट ऑफिस मेरी इनकम में भी चेंजेस आएगा. वही चेंजेस मेरे आउटपुट में भी दिखाएगा, वही चेंजेस मेरे एम्प्लॉयमेंट पे, और लास्ट वही चेंजेस मेरे इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी शो करेगा. नेक्स्ट इज़ व्हाट? लंपिंग मेथड. मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमी क्या यूज़ करता है? स्लाइसिंग मेथड, मतलब टुकड़ों में स्टडी करना. और मैक्रो इकोनॉमी क्या यूज़ करता है? लंपिंग मेथड, मतलब वो पूरी एक चपाती को एक साथ स्टडी कर लेगा, वो उसको स्लाइसिंग मेथड में स्टडी नहीं करेगा. समझा आपको? लंपिंग मेथड इज़ अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउल्डिंग, फॉरेस्ट इज़ एन aggregation of the trees, but it does not reveal the property of the individuality. I will give you the one basic example. लंपिंग मेथड इंडिकेट करता है कि आपको स्टडी ऑफ होल फॉरेस्ट बट नॉट द सिंगल ट्री. मतलब मैं पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करूँगी, मैं एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में स्टडी नहीं करूँगी. नेक्स्ट इज़ व्हाट? ग्रोथ मॉडल. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ study the various factors that contributes to the economic growth and development. मैक्रो इकोनॉमी आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट बताता है, साथ ही साथ वो बताता है आपको कि कैसे ग्रोथ होना चाहिए और कैसे आपकी इकोनॉमी को डेवलप करना है. ओके,
Next is what? General price level. General price level is what? Determination and the changes in the price level are studied in the macroeconomy. जैसे मेरे इकोनॉमी में चेंजेस होगा, वो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ों में भी चेंजेस होना, या मैं बोलूँ मेरी इकोनॉमी में थोड़ा सा भी सडन चेंजेस आता है, सपोज कोई भी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाना गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल पे चेंजेस बताता है मुझे. जनरल प्राइस लेवल इज़ अ एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. जनरल प्राइस लेवल मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, उसका प्राइस लेवल बताना. नेक्स्ट इज व्हाट? पॉलिसी ओरिएंटेड. अकॉर्डिंग टू केन्स, मैक्रो इकोनॉमी इज़ अ पॉलिसी ओरिएंटेड. केन्स को याद रखना, प्रोफेसर केन्स. ओके, उन्होंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है? पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है जो सजेस्ट करता है आपको सूटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड द डिप्रेशन. होप सो यू अंडरस्टैंड. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. फर्स्ट बोला है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग होना चाहिए लार्ज नंबर पे. कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्टडी होती है उसकी, पर आपको एग्रीगेटिवली स्टडी करना है, पूरे बिहेवियर और पैटर्न को अंडरस्टूड करके स्टडी करना है. तो इकोनॉमी एक आपको आइडिया देती है जिससे आपको ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने मिलता है. नेक्स्ट इज़ व्हाट? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएशन इज़ व्हाट? अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेस. आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होना, इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स होना. मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है, एनालाइज करता है कॉजेज़ ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम. इनकम, आपकी कंट्री का इनकम हमेशा सेम नहीं हो सकता, चेंजेस हो सकते थोड़े से ऊपर नीचे. आउटपुट में चेंजेस हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस हो सकता है. दीज आर द व्हाट? फ्लक्चुएशन. Next is what? National income. Study of macroeconomy has brought forward the immense importance of the study of national income. हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? नेशनल इनकम. मतलब मेरी कंट्री के पूरे इनकम के बारे में मैं स्टडी करती हूँ. इफ़ आई एम स्टडिंग अबाउट माई कंट्रीज इनकम, दैट इंडिकेटेड मी वॉट? नेशनल इनकम. दैट ऑल्सो इंडिकेटेड वॉट? द सोशल अकाउंट. विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द इकोनॉमी पॉलिसी. Next is what? Economic development. Advanced studies in the macroeconomy helps to understand the problem. जितना ज़्यादा आप एडवांस लेवल पे स्टडी करोगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा और उस पर आप एक बेटर सॉल्यूशंस ला सकते हो. जैसे कि पॉवर्टी, inequalities in the income and wealth, difference in the standards of living, people etc. It suggests the important step to achieve the economic development. जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करूँ तो पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो सकता है. नेक्स्ट इज़ व्हाट? परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमी हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस. आपकी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस आपको एनालाइज करना है, जिसके लिए नेशनल इनकम एस्टिमेट करता है कि यूज़ द परफॉर्मेंस मेजर ओवर अ टाइम by comparing the production of goods and services of one period that of the another period. That means अगर मैंने 2020 का प्रोडक्शन पीरियड लिया, वही मैंने 2019 का प्रोडक्शन लिया, तो मुझे पता चलता है डिफरेंस दोनों के बीच का कि पहले का प्रोडक्शन कैसा था और अभी का प्रोडक्शन कैसा. तो उसके अकॉर्डिंग्स मैं मेरी न्यू पॉलिसीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज़ व्हाट? स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, स्टडी द इकोनॉमिक वेरिएबल. कौन कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल हैं? तो दीज आर द व्हाट? टोटल इनकम के बारे में, बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, आउटपुट के बारे में स्टडी करना, एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करना, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी. दीज आर द व्हाट? मैक्रो वेरिएबल्स. ये कौन से हैं? मैक्रो वेरिएबल्स है. नेक्स्ट इज़ व्हाट? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Macroeconomies helps to analyze the general level of an employment and output in an economy. मैक्रो इकोनॉमी आपको ये एनालाइज कराता है कि आपकी इकोनॉमी में एक जनरल प्राइस लेवल होना चाहिए, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. मतलब मेरी इकोनॉमी में एक बेसिक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट होना चाहिए. होप सो यू अंडरस्टैंड. वी हैव डन विद द फर्स्ट चैप्टर. Thank you so much.